नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सुनाई नहीं दिया। कैसे हैं आप? मनमोहन सिंह जी, मूड अच्छा है? अच्छा है। मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, गुलाम नबी आजाद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पीसी चाको जी, अजय माकन जी, स्टीयरिंग कमेटी के हमारे सब मेंबर्स, विदेश से जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, एआईसीसी मेंबर्स, पीसीसी डेलीगेट्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे सब कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया से हमारे जो दोस्त आए हैं, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जैसे हम आमतौर से करते हैं, प्लेनरी में आधा मेरा भाषण मैं अंग्रेजी में करूंगा। जो साउथ इंडिया से लोग आए हैं उनके लिए, और फिर आधा भाषण मैं हिंदी में करूंगा। Thousands of years ago, there was a great battle, a huge battle on the fields of Kurukshetra. The Kauravas were powerful, extremely well organized, and arrogant. They had money and numbers on their side. They fought a small army led by the Pandavas. The Kauravas were drunk with power and believed they were the greatest. The Pandavas were humble. They didn't speak much. They spoke softly. There were 5 brothers who had recently lost everything. But unlike the Kauravas, they fought for the truth. Like the Kauravas, the BJP and the RSS are designed to fight for power. Like the Pandavas, the Congress is designed to fight for the truth. The people of this country will accept a lying BJP leadership drunk with power, because they know that is what the BJP is designed for. They will accept a man accused of murder as the president of the BJP. But the people will never accept the same in the Congress party. Because they understand deeply, गहराई से समझते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है, ये सच्चाई का संगठन है।
India expects much more from the Congress because it holds us, the Congress party, to a higher standard than any other political organization in this country. India will never let us behave like the BJP or the RSS. It will never let us lie. It will never let us hate. It will punish us if we do nothing but make a grab for power. The BJP is the voice of an organization. Friends, the Congress is the voice of a nation. बीजेपी एक संगठन की आवाज है, कांग्रेस एक देश की आवाज है। गांधी जी spent 15 years in jail and died for India. But India must never forget that when our leader was sleeping on the floor in a British jail, their leader, Mr. Savarkar, was writing a letter begging the British for mercy. Millions of Congress workers have given their lives and struggled for this country. 15,000 of our workers died in Punjab alone. Jharkhand ji will attest to that. Every single state in this country has a list of our workers who have died for this country. There is not a single state in this country where that list does not exist. The soil of this nation is stained with the blood of our men and women. But in the last few years of our last government, I don't say this with happiness, but in the last few years of our last government, we did not stand up to the expectations of the people of our country. And the people of our country were let down. They felt let down by us. The Mahabharata was a battle for India's future. The question being asked on the blood-stained fields of Kurukshetra was whether India would live a lie or face the truth. And this, my friends, is exactly the same question that is being asked thousands of years later today. Will India live a lie, or will India have the courage to face the truth? Today, the corrupt and powerful completely control the conversation in our country. All one hears is we are the fastest growing economy in the world. जहां भी आप जाएंगे, हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं हिंदुस्तान सबसे तेजी से आगे जा रहा है. But go anywhere, any of the cities, and ask our youngsters, ask them, what do you do? और मैंने ये सवाल पूछा है, लाखों युवाओं से पूछा है, क्या करते हो? And the answer you will get, the youngster will look down and he will say, nothing. मैं कुछ नहीं करता हूं. एक तरफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और दूसरी तरफ करोड़ों युवाओं के पास रोजगार नहीं है.
ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। Go to any market and look at all the fancy products. Turn them around. Turn them around, and behind you will read, made in China, made in China, made in China. China is everywhere. It's in our shops, it's in Doklam, in Nepal, in the Maldives, in Burma, in Pakistan, in Sri Lanka. If you're rich, you can make billions selling Chinese products to our hardworking people. You can steal 33,000 crore rupees from the banks, and the BJP government will protect you. The finance minister will go silent because he and his daughter work for crony capitalists. If you're from the middle class, you can spend your entire life trying to buy these products. And if you're poor, your only choice is to be a contract laborer, a farmer, or an unemployed youngster. You're then destined to live in a new phenomena. You're destined to live in Modi's Maya. An imaginary world of Achhe Din, Swachh Bharat, and 15 lakh rupees in your bank account. You will starve, and they will look at you straight in the eye and tell you, wait for your 15 lakh rupees. They will say to you that the pain in your stomach, the hungry pain in your stomach, is your imagination. Instead of making India face its truth, the Prime Minister diverts our attention. He jumps from one event to another. Surgical strikes to demonetization, Gabbar Singh tax to a fancy yoga parade in front of Parliament. चलो योगा करते हैं। रोजगार नहीं है, किसान मर रहे हैं, चलो इंडिया गेट के सामने योगा करते हैं। When it's important for the PM to speak, he goes silent. And then he stops us, the rest of the country, from speaking. But we do not work for the rich and powerful. We in the Congress are the servants of the people. No one, no matter how powerful, can silence us, can silence the Congress party from seeking justice for the people of India. No one can silence us from speaking the truth. For thousands of years, the ideas the RSS defends have crushed our people. It was these very ideas that made Ambedkar ji go thirsty on his bullock cart ride to Koregaon. The ideas that the RSS defends ensured that a touchable person had to open the tap for him in school so he could drink water. It is the same ideas that the RSS defends that forced Ambedkar ji's elder sister to cut his hair for him because no one else would. It is the ideas that they defend that still ensure that millions of our artisans, our potters, our carpenters, our barbers, our tailors never get the true fruits of their labor. The same ideas were in the minds of those criminals who taped and WhatsApped themselves beating those young Dalit boys in Una.
The radicals keep telling us, the Indian people, that we don't understand. When we ask questions, when we demand answers, they tell us, be quiet, you don't understand. They tell the tribal, the jungle is not yours, because we know better what to do with it. They tell the millions of Muslims who never went to Pakistan and supported our great nation, you don't belong here. They tell the Tamils, change your beautiful language. They tell the people from the Northeast, we don't like what you eat. They tell women, dress properly or we'll thrash you. They told Gauri Lankesh and Kalburgi, question us and you will die. They tell our honest businessmen to shut up and allow corrupt officers to extort their hard-earned money. They tell our farmers to work for nothing. Meanwhile, Nirav Modi, who carried out India's biggest theft, has the same name as our Prime Minister. It's interesting. It's an interesting fact. There's more. The most corrupt man in cricket also shares the same name with our Prime Minister. So what does Modi actually mean? What does Modi actually mean? The name Modi symbolizes the collusion between India's biggest crony capitalists and the Prime Minister of India. Modi gives Modi 30,000 crores of your money, and in turn, Modi gives Modi money for marketing Modi and winning elections. That, my friends, is what is going on. Now a little bit in Hindi. अब थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलता हूं. गुजरात का चुनाव हुआ और वहां काफी लोगों ने कहा कि मैं मंदिर में जाता हूं. अजीब सी बात है, क्योंकि मैं सालों से गुजरात के चुनाव से बहुत पहले से दौरों पे मंदिर में जाता हूं. और मैं सिर्फ मंदिर में नहीं जाता हूं, मैं मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में मैं जाता हूं. मगर राजनीति में जब भी कोई मुझे बुलाता है मैं जाता हूं. राजनीति में सीखने को मिलता है. 10 साल पहले, 15 साल पहले 34 साल की उम्र थी, राजनीति में आया और जैसे बहुत सारे युवा हैं, सीखने को मिलता है. सिंधिया जी बैठे हैं, पायलट जी बैठे हैं, कमलनाथ जी बैठे हैं, जो यूथ कांग्रेस में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं. सीखने को मिलता है. दो मंदिरों की मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं. इजाजत है?
टूर्स पे। एक कांग्रेस का पुजारी, दूसरा बीजेपी का पुजारी। मतलब फर्क क्या होता है? मैं सीखा इससे, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं। पहला मंदिर, अंदर गया, शिव का मंदिर था, पूजा हो रही थी, पंडित जी बैठे थे। पूजा खत्म हुई, अलग अलग चीजें की। सवाल पूछने की आदत है, तो मैंने पंडित जी से पूछा, करण सिंह जी से भी बहुत पूछता हूं। पंडित जी से मैंने पूछा, गुरुजी ये आप बताइए आपने किया क्या? आपने दूध डाला, पानी डाला, मंत्र पढ़े, आपने किया क्या? बेटा समझना चाहता है? हाँ गुरुजी। अच्छा ये सिक्योरिटी वाले हैं, इनको परे कर, मैं बताता हूं। परे किया। अच्छा इधर आ, खड़ा हो जा, पीछे दीवार होती है मंदिर के पीछे, उस पे खड़ा हो गया। कहता है मत्था लगा, तो मैंने ऐसे मत्था लगा। फिर कहता है अब अच्छी तरह बात सुन। पहली बात, मैं यहां का नहीं हूं, मैं कश्मीर का हूं। इन लोगों को बताइए मत। अब सुन, तू भगवान ढूंढ रहा है ना, तुझे भगवान कहीं भी मिल जाएगा, जहां तू देखेगा तुझे दिखेगा। मंदिर में ढूंढना है, मंदिर में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, पेड़ों में मिलेगा, आसमान में मिलेगा। जहां तू देखेगा तुझे मंदिर, तुझे भगवान दिखेगा। ये जो हमने किया, ये हम करते हैं, ये हमें करने दे। मगर तू अगर भगवान ढूंढ रहा है, जहां भी तू देखेगा तुझे दिखेगा। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी बात कही, मैं चला गया। उसी के बाद बिल्कुल वैसी सिचुएशन, दूसरा मंदिर, शिव का मंदिर, वही पूजा, वही सवाल, गुरुजी ये आपने क्या किया? बेटा ये मत पूछो। गुरुजी आपने दूध डाला, पानी डाला, इसका मतलब क्या है? बेटा ये मत पूछ। मैं अड़ गया, फिर से पूछा। बाहर निकल गए थे। पंडित जी कहते हैं देखो बेटा, मैंने पूजा कर दी है तेरे लिए, अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई। अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। वो छत देख रहे हो? हां जी गुरुजी। क्या है उस छत पे? सीमेंट है गुरुजी। ऐसे करना, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे उस छत पे सोना लगा देना। मतलब एक व्यक्ति सच्चाई कहता है, हमारा भगवान मंदिर में है, हमारा भगवान पूरी दुनिया में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गुरुद्वारे में है, सब जगह है। और हम सच्चाई के सिपाही हैं। बीजेपी की राजनीति में बीजेपी का जो धर्म है वो सिर्फ
सत्ता को छीनने के लिए है। हम लड़ते हैं, हम खड़े होते हैं, जनता के लिए खड़े होते हैं। मैंने अंग्रेजी के भाषण में बोला, हमारे लोगों ने अपना खून दिया है और हम नफरत नहीं करते हैं, हम गुस्सा नहीं करते हैं। आप हमें मारो, पीटो, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे, कर नहीं सकते हैं, हमें मालूम ही नहीं। मगर इस भाषण में आपको और देश को एक बात बताना चाहता हूं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर देश कठिनाई में है। मैं हर प्रदेश में जाता हूं, किसान कहते हैं कि हम जी नहीं सकते हैं। खेती में से पैसा बनता ही नहीं है, आत्महत्या करनी पड़ती है। दूसरी तरफ करोड़ों युवा बेरोजगार, रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या करना है। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी पे इन लोगों ने भरोसा किया था। मैंने योगा का मजाक उड़ाया, मगर वो सच्चाई है। जो भरोसा उन्होंने मोदी जी पे किया वो टूट गया है, पूरी तरह टूट गया, खत्म हो गया है। और देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि रोजगार की जो समस्या है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले नंबर पे रोजगार, दूसरे नंबर पे किसान। देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार की समस्या को कैसे हल किया जाएगा। और एक ही संगठन है, इस पूरे देश में एक ही संगठन है, मैं बता रहा हूं आपको, ये हाथ वाला संगठन, ये हिंदुस्तान की शक्ति का संगठन, जो युवाओं को इस देश में रोजगार दे सकता है। और कोई संगठन है ही नहीं। मगर उस काम को पूरा करने के लिए इस संगठन को बदलना पड़ेगा। और शायद आप में से कुछ लोगों को यह बात अच्छी ना लगे, मगर मुझे ये कहनी पड़ेगी, इस संगठन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा मैं बताता हूं। वो जो पीछे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उनमें ऊर्जा है, शक्ति है, देश को बदलने की शक्ति है। मगर उनके बीच में और हमारे नेताओं के बीच में एक दीवार खड़ी है। मेरा पहला काम उस दीवार को तोड़ने का होगा। गुस्से से नहीं, प्यार से। और जो हमारे सीनियर नेता हैं, उनकी इज्जत रखकर, उनसे प्यार कर कर हम ये दीवार तोड़ेंगे। इस दीवार के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं।
एक रूप होता है पैराशूट से ऊपर से टिकट लेकर कोई व्यक्ति गिरता है। दूसरा रूप होता है 10-15 साल कार्यकर्ता खून पसीना देता है और फिर टिकट से पहले उसको कहा जाता है, भैया तुम कार्यकर्ता हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, तुम कार्यकर्ता हो, तुम्हारे दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, तुम्हें टिकट मिलेगा। और गुजरात में हमने छोटा सा उदाहरण दिया, बड़ा नहीं, छोटा सा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया और देखा आपने नतीजा देखा। मोदी जी सी प्लेन में उड़ते हुए दिखाई दिए थे। जिस दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हमने सचमुच में शक्ति दे दी, सी प्लेन छोड़ो, सबमरीन में दिखाई देंगे। दूसरी दीवार, और शायद ये और भी बड़ी दीवार है, मगर ये जो पहली दीवार है, इसको तोड़े बिना वो दूसरी दीवार नहीं तोड़ी जा सकती। वो दूसरी दीवार है हिंदुस्तान के युवाओं और राजनीतिक सिस्टम के बीच में दीवार। आज युवा देखता है, 4 साल पहले हिंदुस्तान के युवा ने सोचा मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मिलकर मोदी जी के साथ हिंदुस्तान को बदलने का काम करूंगा। पता लगा, मोदी जी की गाड़ी को धकेला, गाड़ी स्टार्ट हुई, युवा देखते रह गए। एक तरफ नीरव मोदी बैठा, दूसरी तरफ ललित मोदी, और गई गाड़ी। और युवा देखता रह गया, ये हुआ क्या भैया? मैंने तो बदलाव की बात की, मैंने गाड़ी को धकेला। एक तरफ राफेल हवाई जहाज, दूसरी तरफ अमित शाह जी का पुत्र। और मोदी जी हाई स्पीड गाड़ी में फटाक से गए अमेरिका। तो वो दीवार तोड़नी है। और मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप ये स्टेज देखो, बाकी सब राजनीतिक संगठनों की ऐसी मीटिंग आप देख लो, आपको किसी भी मीटिंग में ऐसा खाली स्टेज नहीं दिखाई देगा। हिंदुस्तान के युवाओं जो कांग्रेस पार्टी में हैं और बाहर हैं, यह स्टेज आपके लिए मैंने खाली किया है। ये आपके लिए किया है मैंने खाली। और बात समझ लो, बात समझ लो, अगर हिंदुस्तान को बदलना है तो हर जात के, हर धर्म के लड़कों को, लड़कियों को समझना पड़ेगा। आप ही बदल सकते हो और कोई नहीं बदल सकता है। ना नरेंद्र मोदी बदल सकता है, आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना इस देश को बदला नहीं जा सकता है। सीधी सी बात है। और इसलिए मैंने यह स्टेज आपके लिए खाली किया है। और इसके बाद
और सुनिए, इसके बाद जो भी टैलेंटेड लोग हैं, जो हिंदुस्तान के विजन को मानते हैं, समझते हैं, जिनके दिल के अंदर हिंदुस्तान की आग जलती है, करोड़ों लोग हैं, हिंदुस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, अलग अलग देशों में हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस स्टेज को आपसे मैं भरूंगा, आपको लेकर घसीट घसीट कर यहां लाऊंगा। जो टैलेंटेड लड़के हैं, लड़कियां हैं इस देश में, जैसे 70-80 साल पहले आप कांग्रेस पार्टी को देखते, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आजाद, जगजीवन राम, लिस्ट थी, और इनमें से कोई भी व्यक्ति इस देश को चला सकता था। वही मेरा सपना है। जैसे उन दिनों कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, वैसी कांग्रेस पार्टी मैं देखना चाहता हूं। सीनियर नेता हैं, आपकी जगह है। कांग्रेस पार्टी में युवा हैं, आपकी जगह है। और कांग्रेस पार्टी के बाहर करोड़ों युवा हैं, आपकी भी जगह है। मिलकर क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, और कैसे करेंगे। 2-3 चीजें हैं। दुनिया में आज 2 विजन दिखाई दे रहे हैं। एक अमेरिका का विजन, एक चाइना का विजन। मैं चाहता हूं 10 साल के अंदर बीच में एक इंडिया का विजन भी दिखाई दे जाए, कि पूरी दुनिया के है, हां भैया ये तरीका है, ये तरीका है, मगर सबसे अच्छा तरीका ये तरीका है, बीच वाला, भाईचारे का, अहिंसा का, प्यार का। करने के लिए युवाओं को रोजगार। सीधी सी बात है, चाइना के साथ कंपटीशन है। 30,000 24 घंटे में रोजगार देते हैं। प्यार से मुकाबला करना है, दुश्मनी से नहीं, नफरत से नहीं, मगर प्यार से। रोजगार कैसे आएगा? हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई चीज बनती है। यूपी को देख लीजिए, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, लखनऊ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, शिवकाशी, स्किल्स की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। इंटेलिजेंस की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। ऊर्जा की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। कमी एक है, जिसके पास स्किल्स हैं, जिसके पास ऊर्जा है, उसके पास बैंक लोन नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो हमारा स्किल्स का ढांचा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम उसको बैंक के पैसे से और टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात, आज किसान अनाज उगाता है, सब्जी उगाता है, ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाता है। यूपी के सड़कों पे आलू दिखाई देते हैं, किसान फेंक देते हैं,
इसको हम बेच नहीं सकते। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी फूड पार्क्स का नेटवर्क लगाएगी, बिछाएगी, फैलाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में किसान अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना फल डायरेक्टली सीधा फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जाके बेचेगा। और एक और आश्वासन मैं हिंदुस्तान के किसान को देना चाहता हूं यहां से, आपने इस देश को बनाया है, टेक्नोलॉजी से पहले, बड़े बड़े उद्योगों से पहले आपके खून पसीने ने इस देश को बनाया है। और यह देश उस बात को कभी नहीं भूलने वाला है। हमारी सरकार आएगी, हम आपकी रक्षा करेंगे, दिल से आपकी रक्षा करेंगे। और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, वैसे ही हम आपकी जरूरत पड़ने पे मदद करेंगे। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, और अगर रोजगार की जरूरत है और किसानों को रक्षा की जरूरत है, तो तीसरा सबसे बड़ा काम शिक्षा का है। आज व्यापम स्कैम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। दिल्ली में युवा धरना दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बिकता है और एक नई जात बन रही है। वे लोग जो क्वेश्चन पेपर को खरीदकर एग्जाम पास करते हैं, और यह पूरे देश में आस्ते आस्ते फैल रहा है। शिक्षा सिर्फ एलीट क्लास की नहीं होती। शिक्षा का हक हर युवा का हक है, हर जात का, हर धर्म का हक है। आजकल आईआईटी है, आईआईएम है, मगर बहुत कम है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, उसको हम देश के कोने कोने में फैला देंगे, और लाखों करोड़ लोगों को जिस प्रकार की शिक्षा आईआईटी में और आईआईएम में मिलती है, वैसी शिक्षा देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। पूरे देश में बीजेपी ने डर फैला रखा है। प्रेस के लोग डरते हैं, और पहली बार हमने देखा 70 साल में यह कभी पहले देखने को नहीं मिला। हिंदुस्तान की जनता न्याय लेने कोर्ट में जाती है। पहली बार हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज न्याय लेने जनता की ओर दौड़ रहे हैं। ये आरएसएस के संगठन का काम है। कांग्रेस पार्टी और आरएसएस में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करते हैं, वो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना चाहते हैं।
वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन चाहते हैं, RSS, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन RSS के नीचे काम करें, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पुलिस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। और सच्ची लड़ाई ये लड़ाई है। हम हमारे इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस वाले हमारे बारे में भी, कांग्रेस पार्टी के बारे में भी खराब लिखते हैं, कभी कभी गलत भी लिखते हैं, मगर मैं स्टेज से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप जितना भी खराब लिखना चाहते हो हमारे बारे में लिखो, मगर कांग्रेस पार्टी का ये जो हाथ है ये आपकी रक्षा करेगा। जब आरएसएस आपको मारेगी, दबाएगी, काटेगी, ये हाथ आपकी रक्षा करेगा, ये लोग आपकी रक्षा करेंगे। दो विचारधाराओं की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और हमारी विचारधारा चुनाव में जीतने जा रही है। आपने देखा होगा एक के बाद एक बीजेपी चुनाव हार रही। मोदी जी के चेहरे में चेंज देखा होगा आपने, थोड़ा सा सूट गायब हो गया, अब सूट नहीं पहनते, और सोच रहे हैं कि शायद गुजरात में निकल गए, शायद 2019 में नहीं निकल पाएंगे, फंस जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी को लड़ना है बिना डरे, किसी से नहीं डरना आपको। गांधी जी का संगठन है, शेरों का संगठन है ये। किसी से नहीं डरेंगे हम, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, हिंसा नहीं फैलाएंगे। ये जो दो दीवारें हैं इनको तोड़ेंगे और एक बार फिर हमारे प्यारे देश को रास्ता दिखाएंगे। आपने, जैसे मैंने कहा, 15 साल से मैं राजनीति में हूं, आसान नहीं है। झटके पड़ते हैं, ठोकर पड़ती है, चोट लगती है, और मैं समझता हूं मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है, मगर इससे हम सीखते हैं, समझते हैं, और जब हमें ठोकरें लगती है, दर्द होता है, चोट लगती है, तो जो हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान की जो आवाज है, उसके हम पास जाते हैं, जाना पड़ता है। तो आस्ते आस्ते राजनीति ही हमें सिखाती है। गलतियां भी होती हैं, सब करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, मगर आरएसएस और बीजेपी में हम में एक फर्क है। हम मान लेते हैं, हम कहते हैं हां हमने गलती की, फिर से नहीं करेंगे। वो मानते नहीं हैं,
वो सुनते नहीं। डिमोनेटाइजेशन करेंगे, पूरी दुनिया कह दे गलती की, मोदी जी आंसू बह देंगे, मगर ये नहीं मानेंगे कि गलती की। मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, एंटनी जी बैठे हैं। अगर ऐसी गलती, कांग्रेस पार्टी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, मगर गलती ऐसी की होती तो 1 मिनट में हमारे सब नेता कहते हैं हाँ हमने गलती की, अब इसको ठीक करते हैं। 1 मिनट में करोड़ों लोगों को चोट मारी, मगर यह नहीं कह सकते कि भैया हमने गलती की। गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। कुछ ही दिन पहले प्रेस में आया कि हिंदुस्तान का जीएसटी सबसे ऊंचा है दुनिया में। सिर्फ 3 देश हैं, पाकिस्तान, सूडान और हिंदुस्तान। इंप्लीमेंटेशन बर्बाद कर दिया, मगर मोदी जी एक बार भी ये नहीं कह सकते हैं कि हां छोटी सी गलती हो गई। आगे भी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े काम करेगी, अच्छे काम करेगी, देश को आगे ले जाएगी, मगर हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है। वो सोचते हैं कि वो इंसान नहीं है, कुछ और है। शायद मोदी जी सोचते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। तो अब आप सब मिलकर एक साथ खड़े होकर झगड़ा करना है चुनाव के बाद। प्लीज, थोड़ा सा होता है, मगर अब अगले 6-7 महीने के लिए थोड़ी कड़ी डिसिप्लिन चलेगी, थोड़े झटके लगेंगे। तो थोड़ा प्यार से मिलकर एक साथ लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का वर्कर 2019 में हिंदुस्तान को दिखाएगा कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है और कैसे चुनाव जीतती है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।